तो उस दिन हमने ये सब कर लिया था। नंबर सीरीज का पैटर्न्स मोस्टली सारा हो गया, लेकिन कुछ कुछ अभी भी बाकी है। जैसे ये डबल डबल डिफरेंस, ट्रिपल डिफरेंस, अदर कॉमनली यूज पैटर्न्स सारा कर दिया था। ये भी कर दिया था। ये वाला एक है, प्लीज ये वाला पैटर्न ट्राई कीजिए एक बार। 04 18 48 100 180। ये हो गया क्या? अरे वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्लास में नहीं हुआ, होमवर्क किया ना आप लोगों ने? यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके, ये जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग एक बार देख लो। 04 18 48 फिर नेक्स्ट। तो ये है आपका हाँ, ये 1³ - 1² 1³ - 1² मतलब 1 - 1 को ही हम लोग वैसे दिखा रहे हैं, ठीक है। ये वाला पैटर्न है, ये 2³ - 2² है, ये 3³ - 3²। ये है आपका 4³ - 4²। ये चीज 64 - 16 है ना, ये तो उस तरह से। और ये है आपका 5³ - 5² मतलब 125 - 25। तो ये होगा 6³ - 6² मतलब 216 - 36, दैट इज 180। ठीक है, सही है। जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग एक बार ये पैटर्न देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, आज क्वेश्चन में आ भी सकता है आगे। कोई ना क्वेश्चन में ये पैटर्न गिरेगा ही, ठीक है। चलो, ये हो गया। उसके बाद स्क्वायर एंड क्यूब मिक्स कर दिया था, ये भी कर दिया था। ये वाला होमवर्क किया क्या? 447 उकील। ये वाला क्या पैटर्न है? देखो डिफरेंस ही होगा ऑब्वियसली। 338 345 358 378 407। डिफरेंस चेक कर लो कितना आएगा। ये 7, ये कितना आ जाएगा? 13। 13 आ रहा है ना? ये कितना आएगा? 20। इधर कितना आएगा डिफरेंस? 22 और 7 29। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं ना? क्या पैटर्न यूज किया इसमें? क्या पैटर्न यूज करेगा बोलो, आप लोग सोचो। अगेन डिफरेंस, सॉरी सॉरी। हाँ, फिर डिफरेंस लेने से क्या आएगा? 5 7 9 11। 5 कहाँ है डिफरेंस? 6 है ना यहाँ पे। और 448 कहने के पैसा मुक पैटर्न टू को पैटर्न टू लगे मुक। सॉरी माय मिस्टेक। और पैटर्न पैटर्न हुआ ना इनो इतिया।
ডাবল ডিফাৰেন্স ডাবল ডিফাৰেন্স ক'ত তাৰপিছত ডাবল ডিফাৰেন্স কৰিলে কি ওলাব ইয়াত 6 ওলাব ইয়াত 7 ওলাব ইয়াতে 9 ওলাব তাৰপিছত 6 7 9 দি কি কৰিবা তুমি একো কৰিব নোৱাৰা ৰবা মোক চাব দিয়া কি কৰিব পাৰি জাষ্ট এ মিনিট 7 13 ডাবল ডিফাৰেন্স 1 2 3 প্যাটার্ন যাব মানে 1 2 3 প্যাটার্ন ও আকৌ ডাবল ট্রিপল ডিফারেন্স কৰি উলিয়াইছে নেকি ট্রিপল ডিফারেন্স বেলেগ কিবা প্যাটার্ন আছে ইয়াত ট্রিপল ডিফারেন্স বাৰু ঠিক আছে বাট ট্রিপল ডিফারেন্সত দুটা ডিফারেন্সত ল'ব নোৱাৰি দুটা বস্তু থাকিলে থাৰ্ডটো তুমি কেনেকে প্ৰেডিক্ট কৰিবা ট্রিপল ডিফারেন্সত চোন এটাই হেৰি পাবা ন এটাই প্যাটার্ন পাবা তো তুমি সেকেন্ড প্যাটার্নটো কেনেকে প্ৰেডিক্ট কৰি আছা 1 2 3 6 7 9 ন 1 2 3 1 2 পালে 3 নাপাবও পাৰো ন 1 2 4ও হ'ব পাৰে 1 ৰ ডাবল 2 2 ডাবল 4 হেতু হ'ব পাৰে ন এটু 1 2 3 কোনো প্যাটার্ন নুলাবও পাৰে সেইটো ফিক্সড আনসার নহয় অলপ বেলেগকে ভাবি চোৱাচোন ৰবা নহলে তোমালোকে ট্রাই কৰা মইও ট্রাই কৰি আছো চাও কি হয় এটাতো প্ৰবলেম আছে ইয়াত এইটো সেভেন ইয়াত 13 ন কিবাতো ইয়াত প্ৰবলেম আছে ইয়াততো এইটো 2 কিউব মাইনাস 1 হয় তাৰপিছত যদি মই লওঁ 2 স্কোয়ার প্লাস 3 ধৰিলো এইটো 2 স্কোয়ার প্লাস 3 হয় এইটো 3 স্কোয়ার প্লাস 4 হয় তো ইয়াত 4 স্কোয়ার প্লাস 5 আহিলে স্টিল হেতু নহব ন এইটো কোৱেশ্চনত কিবাতো প্ৰবলেম হৈ আছে কিবা এটা ভুল আছে এইটো কোৱেশ্চনত কিবা এটা ভুল আছে এইটো কোৱেশ্চন মই চাব লাগিব দে কিবা এটাতো ভুল হৈ আছে কোনোবা এটা পাৰ্টত কিবা মিসিং হৈ আছে নহলে এনেকে নোলাব একো প্যাটার্ন লাগা নাই 7 যদি 2 কিউব মাইনাস 1 2 ইন্টু 3 প্লাস 1 3 ইন্টু 4 প্লাস 1 এইটো চোৱা যদি এইটো আমি এনেকে লিখো এইটো 2 ইন্টু 3 প্লাস 1 এইটো 3 ইন্টু 4 প্লাস 1 হয় সো ইয়াত 4 ইন্টু 5 প্লাস 1 এইটো 21 হ'ব লাগিছিল ন দেন মেবি 5 ইন্টু 6 প্লাস 1 হলে হয় 31 তেনেকুৱা কিবা এটা ইয়াত কিবা এটা নাম্বার ভুল হৈ আছে কিবা এটা নাম্বার ভুল সোমাই আছে ঠিক আছে সো উইল ট্রাই দিস লেটার নালাগে এইটো এতিয়া কিবা এটা নাম্বার শিওরলি ভুল আছে ইয়াত নহলে এনেকে নোলাব Sir, bhai, it's a wrong number question. 3382 জায়গা 339 হলে 447 আহিলে হেতেন স্যার হেতুৱে মই কৈ আছো কিবা এটা নাম্বার ভুল আছে ন 338 ৰ জায়গাত যদি 339 338 ৰ জায়গাত 339 তেতিয়া হলে কি হ'ব 339 হলে 6 ওলাব ঠিক আছে মই এইটো চাম এইটোত পিছত টাইম ওয়েস্ট কৰি লাভ নাই ইয়াত কিবা এটাতো নাম্বার ভুল সোমাই আছে ওকে সো টুডে উইল স্টার্ট মাল্টিপ্লিকেশন তো তোমালোকে এটা কাম কৰা এইটো কুৱেশ্যন ট্ৰাই কৰা নহলে মই এটা কুৱেশ্যন বুজাই দিওঁ কেনেকে ট্ৰেন্ডটো কেনেকে গম পাবা মাল্টিপ্লিকেশনৰ এইটো মেইন হয় বুজা ট্ৰেন্ডটো কেনেকে গম পাবা ইয়াতে চোৱা যে নাম্বাৰটো আগতে চোৱা মাল্টিপ্লাই আমি যেতিয়া কৰো এটা নাম্বাৰক বেলেগ এটা নাম্বাৰৰ লগত যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰো তুমি যদি এটা নাম্বাৰক কন্টিনিউয়াস মাল্টিপ্লাই কৰি থাকা তেতিয়াহলে নাম্বাৰটো লাহে লাহে বাঢ়িব যেতিয়া তোমাৰ মাল্টিপ্লিকেশন যোনটো নাম্বাৰ দি কৰিবা সেইটো যদি অলপ বেছি বাঢ়ি গল তো নাম্বাৰটো ঘপকে উঠি যাব হয় নাই আগতে বহুত লাহে লাহে ইনক্রিজ হ'ব বাট যেতিয়াই তুমি আগতো মাল্টিপ্লাই এক সেকেন্ড হা জাস্ট এক সেকেন্ড যেতিয়া তুমি আগতো মাল্টিপ্লাই কৰি গৈ থাকিবা ন তেতিয়া নাম্বাৰটো ঘপকে ইনক্রিজ হৈ যাব তো মাল্টিপ্লিকেশনত হেতুৱে ট্রেন্ড হয় যে আগতে লাহে লাহে ইনক্রিজ হ'ব বাট সাডেনলি ঘপকে ইনক্রিজ হৈ যাব তো ইয়াতো এটুৱে হৈ আছে চোৱা
ইয়াত আগত সেম থাকিল, তাৰপিছত অলপ বাঢ়িছে, তাৰপিছত আৰু অলপ বাঢ়িছে, তাৰপিছত ডাইৰেক্ট জাম্প মাৰিছে 78 পৰা 312 লৈকে জাম্প মাৰিছে। চ' নেক্সট নাম্বাৰটো কি হ'ব? এইটো বাৰু পেটাৰ্ণ ইজি আছিলে, এইটো কেনেকে ওলাব এইটো দেখিয়ে গম পাই গৈছো। এইটো 13 into 1, ইয়াত মাল্টিপ্লাইড বাই 2, ইয়াত মাল্টিপ্লাইড বাই 3, ইয়াত 280 32 4, তো ইয়াত কি হ'ব 5, তো 312 into 5 মই কৈছিলো যদি তুমি নাম্বাৰ এটা 5 দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে আগতে সেই নাম্বাৰটোক ডিভাইডেড বাই 2 কৰি দিয়া, ডিভাইডেড বাই 2 কৰি এটা 0 লগাই দিয়া, ঠিক আছে। তো 312 ৰ আধা কিমান 156 1560, ক্লিয়াৰ ন? ঠিক আছে, সিম্পল এজ দ্যাট। নাম্বাৰটো ইনক্ৰিজিং ট্ৰেণ্ডটো চাবা, যদি বহুত বেছি ঘপকে ইনক্ৰিজ হৈ আছে দেন ইট ইজ ডেফিনেটলি মাল্টিপ্লিকেশ্যন। দেন তোমালোকে চাবা কোনটো তোমালোকৰ ইজি হয়, কোনোবাই সৰু মাল্টিপ্লিকেশ্যন ইজিলি ধৰিব পাৰে और बाकी लोग कोई जो बड़ा मल्टीप्लिकेशन है उनको जल्दी से समझ में आता है। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जो जल्दी समझ में आता है आप लोग वो वाला ही अपना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार, प्लीज फाइंड द आंसर। आप लोग ट्राई कीजिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। वन सिक्स थ्री टू जीरो। बाकी बाकी किसी का नहीं आया आंसर। काव्यराज 16320, इजी है ना ये वाला? हाँ, हेरेम्बा 1216320, ठीक है, करेक्ट है, 16320 इज द करेक्ट। समझ में आ गया, ये इजी था ना? कैसे आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा, देखो आपको धीरे धीरे आप पढ़ते पढ़ते आप नंबर्स के साथ इतना फेमिलियर हो जाएंगे ना, कोई भी नंबर देखने से समझ में आ जाता है कि कौन सा क्या होना चाहिए, मतलब ठीक है। जैसे यहाँ पे एक चीज हमको समझ में आ रहा है कि देखो अगर मैं आपके जगह होता तो मैं सबसे पहले इस नंबर से पहचान लेता, ये वाला। क्यों? क्योंकि 200 का 8 टाइम्स कितना होता है? 1600 होता है। और 4 का 8 टाइम्स कितना होता है? 32 होता है। तो 1632 मिला ना 204 का 8 टाइम्स। और यहाँ से भी पकड़ना इजी है, 4.25 का डबल होता है ना 8.5, है ना? 4.25 का डबल होता है 8.5, फिर 8.5 का 4 टाइम्स होता है, बिकॉज देखो एक चीज आप लोग देखो, 8.5 जो है ना ये 17 का आधा है, ठीक है। और 34 जो है वो 17 इंटू 2 टाइम्स है। तो अगर ये 8.5 इंटू 4 टाइम्स होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो 8.5 इंटू 4, और ये तो आप लोग आंख बंद करके दे सकते हैं, ये 6 ही होगा, 2 4 6 8, तो यहाँ पे क्या आएगा इंटू 10, तो 16320, ठीक है। चलो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, बोलिए। एनीवन हैविंग एनी डाउट अंटिल नाउ? बोलो मत, मतलब मैसेज टाइप करो प्लीज, आज थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है लैपटॉप में से। क्लियर, ओके ओके नाइस। तो नाउ यू प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, देखते ये वाला क्वेश्चन कौन कर सकता है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, थोड़ा सा अलग है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं है, दो ऑपरेशन चलेगा इसमें।
हाँ, 2 ऑपरेशन चलेगा, आप लोग ट्राई करो। सेकंड क्लास में क्या स्टूडेंट्स हमेशा कम ही रहता है क्या? फर्स्ट क्लास से? कल तो 20 से ज़्यादा 25 मंथ स्टूडेंट्स थे, आज क्या हो गया? आज कितना है? वन फोर्टी रिया बोल। करेक्ट। करेक्ट है शायद। नहीं, रॉन्ग है शायद। हाँ, रॉन्ग है। 140 नहीं है आंसर। क्या लॉजिक लगाया आपने? मैसेज में बोल, टाइप करके बोल दीजिए एक बार। लॉजिक कौन सा लगाया? 153 हो सकता है, 153 मुझे लगता है आंसर पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आएगा शायद आंसर। क्या लॉजिक लगा रहे हैं आप लोग इसमें? लॉजिक लिख के दीजिए। थोड़ा लिख के दीजिए, एक फर्स्ट स्टेप में समझ जाऊंगा। हाँ, तो इंटू 0.5 प्लस 0.5 ही तो है ना। तो आपने कैलकुलेशन में गलती कर दिया। लॉजिक सही पकड़ा है। देखो लॉजिक क्या होगा इसमें। ये 17 9 15 40 डैश। कैसे पहचानना है? देखो लॉजिक तो सबको पता है, लेकिन पहचानना कैसे? देखो नंबर पहले इंक्रीज हुआ, सॉरी नंबर पहले एक बार डिक्रीज हुआ ना, एक बार डिक्रीज हुआ, फिर नंबर इंक्रीज होते ही जा रहा है। दो चीज है, मैंने आपको कल क्लास में बोला था, यहाँ पे एक एक शायद स्लाइड में मैंने आपको लिख के भी दिया था। कौन सा स्लाइड में था ये? अरे यार, तो हाँ ये वाला देखो। तीन केस होता है, अगर ऐसा हो रहा है कि नंबर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, तो हो सकता है प्लस माइनस का चल रहा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हो सकता है कि एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड। या फिर हो सकता है कि ऑल्टरनेट सीरीज है। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी, इसमें क्या हो रहा है देखिए। हाँ, 143.5 इज करेक्ट। हाँ, इसमें क्या हो रहा है देखिए। हाँ, 143.5 इज करेक्ट। चिंगलाई और रिया पोल करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है देखिए। एक बार नंबर डीप हुआ, एक बार नंबर डीप हुआ, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो ही रहा है। तो इसका मतलब क्या है ना, ये मल्टीप्लीकेशन ही है। ठीक है, क्योंकि एक बार माइनस होके फिर प्लस प्लस तो नहीं होगा, और एक बार मल्टीप्लाई होके फिर डिवाइड भी नहीं होगा। डिवाइड होने से नंबर और घटना चाहिए। आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो देखो एक बार नंबर जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होके फिर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन का केस है। ठीक है, तो पहले नंबर डिक्रीज क्यों हुआ? जब नंबर डिक्रीज होता है ना, एक नंबर जब डिक्रीज होता है तो वो हमेशा इट इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर विच इज लेस देन 1। आप खुद सोचो, एक नंबर आप ले लो 8, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करने से 8 आएगा। आप 1 से बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करो 3, तो बड़ा आ गया। लेकिन आप अगर इसको 1 से छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 से छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1/5 जैसे, तो ये नंबर घट जाएगा 8 से, 8 से वो कम हो जाएगा।
इसका मतलब फर्स्ट में वही किया गया है। तो क्या किया गया है देखिए, तो 17 इंटू क्या किया गया 0.5, 17 इंटू 0.5 मतलब 17 का आधा, 17 का आधा कितना होता है 8.5, 8.5, ठीक है, इंटू 8.5 प्लस 0.5, समझ रहे हैं ना, 8.5 प्लस 0.5 कितना होता है 9 होता है। तो ये क्या हुआ इंटू 0.5 प्लस 0.5, क्लियर फर्स्ट स्टेप। ये एक बार आपको फर्स्ट स्टेप मिल गया ना, बाकी आप लोग खुद ही अंदाज भी लगा सकता है कि वो आंख बंद करके आप लोग कर सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो या तो इंटू 1+1 होगा या तो इंटू 1.5 प्लस 1.5 ही होगा। ये दोनों चीज ही पॉसिबल है और कुछ अलग नहीं होगा। एक बार आपको इंटू 0.5 प्लस 0.5 ये पता चल गया, उसके बाद आप लोग आंख बंद करके कर सकते हैं, यही होगा, ये दोनों में से होगा। इंटू 1+1 तो नहीं है, तो इंटू 1.5 प्लस 1.5 में चेक कीजिए, 9 इंटू 1.5 जल्दी कैसे कैलकुलेट करना है, देखो 9 इंटू 1.5 को कैसे जल्दी कैलकुलेट करना है मालूम है, आप 9 को 9 रहने दो प्लस, मैं 9 जो है 1.5 को 1 प्लस 0.5 लिख सकता हूँ ना, आराम से लिख सकता हूँ। तो 9 तो 9 ही रहेगा, बाकी जो 9 इंटू 0.5 मतलब 9 का आधा 4.5 जोड़ दो। तो ये चीज कैलकुलेशन ये दिमाग में भी कर सकते हैं, अगर आपका कैलकुलेशन धीरे धीरे फास्ट होता है हो जाएगा वो, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन दिमाग में करना है। तो 13.5 जो है प्लस 1.5 कितना आएगा 15, तो इंटू 1.5 प्लस 1.5, ये 0.5 मिल गया 1.5, यहाँ पे तो आप आंख बंद करके दे दो, इंटू 2.5 प्लस 2.5 ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट होगा वो होगा इंटू 3.5 प्लस 3.5, बस। 40 इंटू 3.5 कितना होता है 40 इंटू 3.5, एक तो आप पहले 40 इंटू 3 कर लो, 120 प्लस 40 प्लस 40 इंटू 0.5, 40 का 0.5 मतलब 40 का आधा 20, तो 140, 140 प्लस 3.5 143.5, ठीक है। कैलकुलेशन धीरे धीरे इंप्रूव होगा, डोंट वरी, लेकिन लॉजिक निकालना सीखो जल्दी। समझ में आया किसी को डाउट? कोई भी डाउट है आप लोग टेक्स्ट में आज के लिए पूछ लो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। नो सर, ओके, ठीक है, डाउट नहीं है ना, पैटर्न समझो। और कैलकुलेशन थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इंटू 0.5 वाला कैलकुलेशन को हमेशा ट्राई करो ना, कैलकुलेशन जो रहेगा उसमें जब डेसिमल रहता है जैसे 3.5, हमेशा अपना दिमाग में ये ट्राई करो कि डेसिमल को अलग करने और नंबर को अलग करने, तब उससे जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 17 इंटू 3.5 है ना, तो 3 को अलग सोचो और जो आधा है उसको अलग सोचो। 70, सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि 70 इंटू 3.5 ये करना है आपको कैलकुलेशन, 70 इंटू 3.5, आप क्या करो 70 इंटू 3 को आप अलग सोच लो दिमाग में, 70 इंटू 3 को अलग में 210 सोच लिया आपने, और बाकी में 0.5 को सोच लो, 0.5 70 का आधा कितना होगा 35 होगा, तो दोनों को आप मन में जोड़ लो 245, यही आना है आंसर, है ना, यही आना है आंसर, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन ट्रिक से थोड़ा बहुत, ओके, यही था मुझे मल्टीप्लिकेशन में इतना ही समझाना था, और बाकी बहुत सारा पैटर्न्स है। लेकिन आप लोग एक काम करो, आप लोग मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग मतलब कुछ कुछ होमवर्क दे दूंगा क्योंकि आज एक्सरसाइज में भी बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। 3.59, 3.5 से 9, ये देखो कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखो और एक चीज मैं बोलता हूँ, कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, आप लोग ऐसा सोच सकते हैं ना कि यहाँ पे सर एडिशन क्यों नहीं हो रहा है, मतलब डिफरेंस क्यों नहीं हो रहा है, तो डिफरेंस नहीं ले सकते क्योंकि एक डिफरेंस में पॉइंट आ जाएगा ना, एक डिफरेंस में पॉइंट आएगा, दूसरा वाला होल नंबर आएगा, वो तो अच्छा नहीं लगेगा, वो बनाना भी डिफिकल्ट है, तो वो डिफरेंस नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन। कैसे मल्टीप्लीकेशन आएगा, देखो देखो 3.5 को आप ट्वाइस करो, मैंने क्या किया, मुझे पता है कि 3.5 का 2 गुना 7 होता है, तो 7 के पास है 9, 7 के बहुत पास है 9, तो इंटू 2+2 देखो मिल रहा है। फिर नेक्स्ट देखो और 9 इंटू 2 के बहुत पास है ना,
9 इंटू 2 के बहुत पास है 21, तो ये हो गया इंटू 2 प्लस 3, ये हो गया कितना इंटू 2 प्लस 5, ये हो गया इंटू 2 प्लस 7। यहाँ पे क्या क्या नंबर आएगा एनीवन? नेक्स्ट नंबर? 11. 11. हाँ 11 आएगा, एग्जैक्टली इंटू 2 प्लस 11 आएगा, एग्जैक्टली 101 इंटू 2 प्लस 11, तो 202 प्लस 11 213, ठीक है, 202 प्लस 11 213। समझ में आया ना प्राइम नंबर से? तो कभी कभी प्राइम नंबर और उसमें कंफ्यूज मत होना ऑड नंबर में, ठीक है। एग्जामिनर आपको यहाँ यहाँ पे फंसाने का चांसेस बहुत है कि दे विल ट्राई कि आप मतलब देखो प्रीलिम्स में टाइम कम रहता है और प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, तो इसीलिए प्राइम और ऑड नंबर्स में आप लोग थोड़ा अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है। उतना कूल रखना होगा, उतना सा बस। चलिए आप लोग एक काम कीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कीजिए। अभी आप लोगों का स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, डोंट वरी। अभी धीरे धीरे समझ में आने से स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, कैसे बनेगा। या पोल 1490 1490। वन फोर नाइन जीरो करेक्ट, करेक्ट करेक्ट। 1490, हाँ प्रियक्षी करेक्ट, सही है। हाँ अरमान करेक्ट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलिए। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए टाइम लग सकता है, लेकिन कर लो एक बार, सब लोग कर लो ये क्वेश्चन। हाँ 1490 करेक्ट करेक्ट। अभिषेक सरकार 1490। बहुत बढ़िया, आप लोगों को नंबर सीरीज आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। बाकी लोग भी कर लो। निधि सिंगलई, फिर आप लोग जो लोगों ने आंसर दिया था कुकिल। कॉन्फिडेंस आ रहा है ना नंबर सीरीज में अभी? ये क्वेश्चन आप लोग खुद निकाल दिया तो तब तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं नंबर सीरीज में?
यस ओके ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे हो रहा है। देखो पहले तो आप लोग एनालाइज करना है कि इसमें हो क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन। यही मेन चीज है आइडेंटिफाई करने। तो एडिशन नहीं हो रहा है, क्यों एडिशन नहीं हो रहा है? पहले देखो यहां से यहां तक नंबर स्लो इंक्रीज हुआ, एकदम कम, बहुत कम इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा और इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ, लेकिन बाद में देखो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ ना। 72 से डायरेक्ट 296 गया, इसका मतलब एडिशन नहीं है, डेफिनेटली इट इज मल्टीप्लीकेशन। क्या मल्टीप्लीकेशन है? इंटू 1 + 2 है, ये है इंटू 2। देखो आपको पकड़ना पड़ेगा, 7 के पास 9 है ना, 7 का डबल से तो कम है, तो इंटू 1 + कुछ होगा, ठीक है। इंटू 2 + 4 है ये है आपका इंटू 3 + 6, तो ये डेफिनेटली इंटू 4 + 8 होगा, और ये होगा इंटू 5 + 10। 296 को आप मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे, उसके पहले आप 296 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 148 आ जाएगा, एक जीरो लगा दीजिए, प्लस 1480 आ गया, फिर +10 करो, 1490, करेक्ट, ठीक है। आपका आंसर सही आया। चलो आप लोग अभी एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन, ये तो हो गया, ठीक है। हम लोग डिवीजन करेंगे, ऑल्टरनेटिव सीरीज भी करेंगे। आप लोग ना पहले थोड़ा सा क्वेश्चन कर लो प्रैक्टिस करने के लिए। एक सेकेंड, हाँ मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन तो बहुत सारा है। तो मेरा तो प्लान था कल तक खत्म करने का, लेकिन ठीक है चलो, हम लोग पैटर्न ही देख लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन होमवर्क करने को ट्राई करना, मैं एक लगने से एक्स्ट्रा क्लास लेके ये सब करा दूंगा जो भी है। अच्छा ये वाला देखो, नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन डिवीजन। डिवीजन क्या है? आपको डिवीजन को ना डिवीजन की तरह देखने से आपको एक प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम ये होगा कि आपको बहुत ज्यादा मतलब दिमाग ज्यादा चलाना पड़ेगा। तो दिमाग कम चलाने के लिए, अगर देखो आप अगर इसको सीरीज को इस तरफ से देखेंगे ना, तो ये डिवीजन है। लेकिन डिवीजन का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो आप सीरीज को इस तरफ से देखिए, आप सीरीज को इस राइट साइड से देखिए, तो आपको डिवीजन नहीं दिखेगा, मल्टीप्लीकेशन दिखेगा, तो आपका काम बहुत कम हो जाएगा। बिकॉज इट इज इजी, वेरी इजी टू मल्टीप्लाई रादर देन एज कंपेयर टू डू इट डिवीजन। डिवीजन करना डिफिकल्ट है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन करना बहुत इजी है, ठीक है ना। तो ये आप लोग समझ जाएगा कि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। इस साइड से देखना, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आएगा कि ये डिवीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो नंबर्स रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, देखो पहले रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, 7623 693, फिर फट से 77, फिर कम गया, फिर और कम गया, है ना। तो ये डिवीजन हो रहा है, लेकिन आपको इधर से देखना ही नहीं, इधर से देख लो तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व करो, मैं भी करता हूँ। ये डैश है 256, फिर 256, फिर 128, फिर 32, फिर 4। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इधर से देखने से नंबर्स घट रहे हैं ना, इधर से देखने से नंबर्स रिड्यूस हो रहा है, तो इधर से डिवीजन है वो। लेकिन मुझे इधर से देखना ही नहीं है, मैं इधर से देख लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। तो इधर से मल्टीप्लीकेशन है। क्या है मल्टीप्लीकेशन? ये है इंटू 8, ये है आपका इंटू, कितना है ये, 320 164, ये है इंटू 2, 842, फिर ये 1, फिर ये क्या हो जाएगा 0.5। सबका आधा हो रहा है ना, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 1 का आधा कितना, आधा, 1 का आधा कितना होता है, आधा, तो 128 आएगा यहाँ पे। समझ में आया? समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। कुछ नहीं है, सेम सेम एज मल्टीप्लीकेशन, बट यू हैव टू सी इट फ्रॉम द अदर साइड, क्योंकि आपको नहीं तो डिवीजन करना पड़ेगा, और डिवीजन करना मतलब प्रिफरेबल तो नहीं है। आप चाहने से आप कर भी सकता है, लेकिन डिवीजन टाइम वेस्ट है ना, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, डिवाइड करो, उससे अच्छा मल्टीप्लाई कर लो इस तरफ से।
ठीक है, जिनको समझ में आया आप लोग एक बार प्लीज अपना हैंड रेस कर दो, तब मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ। ओके, फाइन। बाकी लोगों को समझ में नहीं आया? अभी सब उठा दिया? ठीक है, समझ में आ गया ना? मोनी ज्योत्सना तुम्ही बुझी पाइसा नो? कोई कोई तो क्लास में आके सो भी जाता है। मैं जब लास्ट में क्लास एंड करने से फिर वो लोग निकलते भी नहीं है, पता ही नहीं चलता है। चलो ये वाला क्वेश्चन करके देखो। अच्छा ये हो गया, मतलब डिवीजन हो गया, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, मैं आज पैटर्न समझा देता हूँ और फिर ना आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। उसमें ना ये क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है, उतना डिफिकल्ट नहीं, आपको आएगा, ठीक है। ये वाला सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। ये ये देखो, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, अराउंड 14-15 क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो ये कंप्लीट कर लेना आप लोग। इजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। मेरे हिसाब से 15 में से 12-13 तो आराम से जाना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये देखो, नेक्स्ट पैटर्न है। आज थोड़ा सा क्लास लंबा खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो रह जाएगा। कल रॉन्ग नंबर भी करना है ना, नहीं तो कुछ अलग पैटर्न डिजाइन करेंगे, एक दिन 2 घंटा का क्लास लेके सीरीज। ये देखो ऑल्टरनेटिव सीरीज, नेक्स्ट पैटर्न। ऑल्टरनेटिव सीरीज में कैसे पहचानना है, मैंने आपको बोला था कि अगर एक सीरीज एक बार इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज कंटिन्यूअस होता है, देन वो क्या है, वो 3 केस हो सकता है उसमें। एक तो हो सकता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट केस। सेकेंड केस हो सकता है वो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। और थर्ड केस है वो, ये है, वो है ऑल्टरनेटिव सीरीज। ऑल्टरनेटिव सीरीज में क्या है, आपको फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर के साथ कंपेयर ही नहीं करना है। देखो पहले ही देखो, यहाँ पे पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो आप क्या करो, फर्स्ट नंबर को थर्ड नंबर के साथ मिलाओ। ऑल्टरनेटली आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो, फर्स्ट और थर्ड मिला, ये और ये मिल गया, फिर ये और ये। तो आप इन तीनों में पैटर्न देखिए क्या है। 496 +3 हो रहा है यहाँ पे, 499 505 में +6 हो गया, 505 514 में +9 हो गया। दूसरा वाला पैटर्न देखते हैं क्या है। 589 586 में -3 हो गया, 586 580 में -6 हो गया। मीन्स नेक्स्ट नंबर जो आएगा यहाँ पे वो -9 होगा। तो 580 -9 इज 571। समझ में आया? कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है कि नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। यू हैव टू ट्राई वंस कि ऑल्टरनेट हो रहा है क्या। कभी कभी ऑल्टरनेट नहीं भी होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑल्टरनेट होगा, जस्ट ए टाइप ऑफ क्वेश्चन। समझ में आ गया? आप लोग अपना हैंड हैंड लोअर कर दीजिए, नहीं तो मैं कर देता हूँ। ये एक इधर प्रॉब्लम है, एक बार रेस करने से फिर नीचे नहीं जाता है। ओके, आप लोग अभी एक काम कीजिए, ये वाला क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, 192 193। इसका आंसर निकालो। 296। 296, प्रियाक्षी, रिया पॉल, कुकिल बोरा, त्रिवेणी, अरमान, मोनी ज्योत्सना।
आज क्लास एंड करने के बाद जब कोई रह नहीं जाना चाहिए, ठीक है, कोई कोई रह जाता है, वो लोग क्लास में सो जाता है। 296 सही होगा। ऑल्टरनेट सीरीज का पैटर्न चल रहा है यहाँ पे +1, फिर हो गया +3, फिर हो गया ये +5, दूसरा वाला में इधर +2, फिर हो गया +4, तो फिर होगा +6, तो ये 296। हमारा ये मिसिंग नंबर होने के बाद एक चैप्टर रह जाएगा रॉन्ग नंबर, तो हाँ 296 करेक्ट, ठीक है। तो रॉन्ग नंबर थोड़ा सा बड़ा चीज है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मिसिंग नंबर जैसे इजी है ना, रॉन्ग नंबर थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो रॉन्ग नंबर का क्लास हम लोग 20 तारीख को, आज 17 है ना, 18 19, 20 तारीख को सुबह को करेंगे। जो प्लान किया था वो 2 घंटा का क्लास में हम लोग रॉन्ग नंबर और जितना भी मिसिंग नंबर है सारा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, इसीलिए इसको करना जरूरी है। ये और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करेंगे, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है। ये लास्ट सीरीज देख लो आप लोग, फिर हम लोग कल देखेंगे ये वाला। कल हम लोग अदर इंपॉर्टेंट पैटर्न्स देखेंगे। ये आप लोग खुद करने से कर सकते हैं, बस आप लोग क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस कर देना। ये देखो, ये क्या है, फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज किसी को पता है व्हाट इज फिबोनाची? एनीवन नोज व्हाट इज फिबोनाची? मैथ्स में कभी नहीं मिला फिबोनाची सीरीज। हाँ 45, करेक्ट करेक्ट, आपको पता है मतलब ना। देखो क्या है फिबोनाची, फिबोनाची में क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट नंबर 1 है, सेकंड नंबर 2 है ना, तो जो थर्ड नंबर होगा ना वो इन दोनों का सम होगा, ठीक है। मतलब ए नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रीवियस 2 नंबर्स। जैसे 1 2 है ना, तो नेक्स्ट नंबर 3 होगा, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2 + 3 होगा 5। नेक्स्ट नंबर 3 + 5 होगा 8। नेक्स्ट नंबर 5 + 8 होगा 13। नेक्स्ट नंबर 13 + 8 होगा 21। ऐसे चलता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 5 है, 6 है, तो फर्स्ट नंबर ये 11 है, 5 + 6 11। नेक्स्ट 17 है, 17 क्या है, 11 + 6 28 क्या है, 17 + 11, हाँ 45, ठीक है। तो उसी तरह जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा, 28 + 17। मतलब एनी नंबर इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 नंबर्स, बस इतना ही है, ठीक है। ओके, तो आप लोग एक काम करना, यहाँ पे क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ये अदर इंपॉर्टेंट पैटर्न वाला मत देखो, ये मैं कराऊंगा आपको अच्छे से। आप लोग ये वाला चीज करो, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में जितना क्वेश्चन है सारा करने को ट्राई करो। इजी इजी क्वेश्चन है, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी, यहाँ पे देख के पता चल रहा है। -9 -18, ये -27, तो नेक्स्ट -36 होगा, ठीक है। तो 170 आंसर, ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो आप लोग क्या करो, ये सारा कर लो, थोड़ा सा हाई लेवल भी मिलेगा, मिक्स जैसा है, ओके। ये आप लोग सारा क्वेश्चन मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आप लोग भूल भूल जाएंगे नहीं तो। यहाँ पे ये क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में ऑल आर होमवर्क, सब होमवर्क है, सारा करो, फिर हम लोग जो नहीं आएगा आपको क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके चलो, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू। Good night, sir. Good night, sir.